नहीं हो सर रही मैं है। असद साहब की तरह नहीं सोचता, मैं थोड़ा जाहिल आदमी हूँ और मेरा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम चेंज हो जाएंगे बहुत जल्दी। आई मे बी एग्री, मगर मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। हमें अल्लाह ताला ने रहमत दी है ट्रम्प की शक्ल में, और उन्होंने क्लाइमेट वाला किस्सा ख़त्म कर दिया, तो अमेरिका का एक्सपोर्ट तो हमारा बच गया। ठीक है, अब कोई बाकी सारी लिप सर्विस ही है ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कार्बन क्रेडिट्स मार्केट भी सही नहीं बनी। फ्रैंकली इट्स सो कॉम्प्लेक्स। is कि we have a triple planetary crisis. ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस में एक तो आपका क्लाइमेट चेंज के जितने भी वो माइलस्टोन्स हैं जिसको हम टिपिंग पॉइंट्स कहते हैं, हम बहुत से टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस कर चुके हुए हैं। कि अगर एक ईयर में हमारी 76 मिलियन पेपर शीट्स हैं तो हम अब तक कितनी पोल्यूशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैला चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान जो मेहमान गिरामी हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनमें जनाब शब्बर जैदी साहब, एक्स फॉर्मर FPR चेयरमैन, एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर and board of governors of many institutions and advisor to many committees of the government and the chartered accountants societies. The next to Shabbar Zaidi Sahab, there is another very heavyweight guest, Sayyid Asad Ali Shah Sahab. He is over 30 years of experience in his public administration and is an orator at the national and international level. He is also the fellow chartered accountants. He worked for the public administration, particularly in Sindh. And next to it is the climate expert, Ms. Afia Salam Sahiba. She is basically a geographist, but she is renowned journalist, and she worked hard and a lot on the environment and the policy, and particularly to the gender participation in the elevating the environmental sustainability. Then next to it, a new area of environmental sustainability, that is Naveed Abbas Mehman Sahab. He is a digitalized expert. He worked a lot in the process of automations in public administration, and he has his services in customizing the customs and the FPR. So let's start with the title today. That is on the sustainable economies, balancing growth and environmental responsibility. So before starting discussing this issue, I just would like to have few words. Words is that, you know, environmental sustainability is the core issue of today's world. We stuck with the climate change, deforestation, pollution, biodiversity, water scarcity, soil degradation, etc., etc. And having said this, we need to address what? We need to address sustainability with economic policies. We need to seek balance between economic growth and social equity and the environmental protection. And we need to identify the challenges and risks involved in getting the economic growth with environmental sustainability. So to come up with the discussion, let me open the question with Shabbar Sahab. क्या इक्तिसादी तरक्की माहौलियाती पायदारी से मुतसादिम है? Is economic growth at odds with environmental sustainability? देखिए, as far as I would limit it to the Pakistan context, Pakistan is facing a very strong movement towards economic growth, and we are not able to match the region in the economic growth. So, but at the same time, we are also required to meet the sustainable and the climate standards which are prescribed internationally. So we are in a very difficult position, and our position is slightly more difficult than the other parts of the world, because we have to gear up our economic growth in exponentially high order, and at the same time we have to maintain the
international standard for sustainability. And let me just clarify my position with the practical example. Whenever my clients and my people, they export the products in Pakistan, which is generally mostly rice and textile and the things, then there is a very strong requirement of the buyer side that the sustainability standards are met. And there are many cases where we are not compatible with those standards. So Pakistan in practical sense is in a problem because, for example, in Faisalabad, there is a serious problem of the pollution of the used industrial water. There is a serious problem of the used industrial water in Kasur. There is a serious problem of the used industrial wastage in Karachi. So I would say that Pakistan is facing a very difficult time, but we have to meet the sustainability standards, and Pakistan has to jot out a very serious plan for this purpose. Otherwise, at the moment, I would have to candidly say that whatever we do, what the jargons we use, whatever terms we use, we borrow it from somewhere else. हमारा अपना सब्जेक्ट नहीं है, ये हमने बाहर से बोरो किया है. एज़ यूजुअल हमें कुछ नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या होता है. ये बस एक जार्गन चल रहा है, हमने भी उसको चला दिया है. बट हमारा जो इंटरनल, हमारा जो अपना होम ग्रोन, इस पर कोई काम नहीं है. मतलब हम जनरली, मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये एक हमने अडॉप्ट कर लिया है. हमारा अपना कोई होम ग्रोन, जब तक आप इसको होम ग्रोन नहीं करेंगे, जब तक लोग इसको बाय नहीं करेंगे, अभी हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है. हम क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ ही हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उर्दू में तो हमें लफ्ज़ भी नहीं है इसका मतलब अंग्रेज़ी में इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता. उर्दू में माहौल की आलूदगी तो आधे बच्चों को तो पता भी नहीं क्या इसका मतलब क्या है उर्दू में, ठीक है ना. तो ये एक अंग्रेज़ी की टर्म है. तो मेरी आप सबसे जो बैठे हुए हैं सब लोगों को ये दरख्वास्त है, या मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस सब्जेक्ट को ओन करें. बहुत शुक्रिया शफर साहब. लेकिन मैं आप ही से सवाल करता हूँ. आपने ये कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है. देखिए, जापान या डेवलप्ड सोसाइटीज़ की आप एग्जांपल्स को लीजिए. उन्होंने अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल को, अपने कॉलोनाइजेशन से खुद से गलियाँ साफ़ करके अपने उस माहौल को, पोल्यूशन को साफ़ किया. हम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग आएगी, ये कौन सी एजुकेशन देनी पड़ेगी लोगों को? सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि जापान ने सोसाइटी को खुद सबसे साफ़ कर दिया. आप बहुत अच्छी बात की है, मुझे बड़ी खुशी हुई. जापान वो मुल्क है जिसके ऊपर 2 एटम बम गिरे, मगर जापान ने आज तक कभी अमेरिकन को गाली नहीं दी. आपके ऊपर बम भी नहीं गिरा मगर आप रोज़ाना अमेरिकन को गाली देते हैं. तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप पाकिस्तान का मुकाबला जापान से कर रहे हैं. मतलब खुदा का वास्ता है, आप ये इस तरह की बातें नहीं करें. जापान का बादशाह देखे आप, उन्होंने उनके ऊपर 2 एटम बम गिराए अमेरिका ने. आज तक कभी मैंने किसी जापानी को अमेरिकन के ख़िलाफ़ बात करते नहीं देखा. वो उन्होंने कहा यार ठीक है, जंग ख़त्म हो गई, अब हम अपनी तरक्की करेंगे. देखिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको पाकिस्तान के माशरे की इथोस चेंज करनी पड़ेंगी. इथोस का मतलब ये है कि आपके माशरे के अंदर आपका घर साफ होता है, गली साफ नहीं होती. आप कराची में चले जाएं, सब के घर बहुत साफ है, गली साफ नहीं है. ये है प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की, एनवायरनमेंट की. हम कूड़ा इस तरह करके गली के बाहर फेंक देते. हमें कोई कंसर्न नहीं है कि गली साफ़ होगी या नहीं होगी. हमारी गली इसलिए साफ़ नहीं होती, मैं बार बार एक दफ़ा पहले भी यहाँ प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारी गली इसलिए साफ़ नहीं होती कि हमारे सब के बच्चों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि यहाँ नहीं रहना, अमेरिका में रहना है. गली साफ उस वक्त होगी जब आप ये फैसला करेंगे कि मैं भी यहाँ रहूँगा, मेरा बेटा भी यहाँ रहेगा, और मेरे बेटे का बेटा भी यहाँ रहेगा, मेरे बेटे का बेटा भी यहाँ रहेगा. आप सब तो यहाँ ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, हम तो प्लेटफॉर्म में बैठे हैं. पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी के लिए स्टेशन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है.
यहाँ हम ट्रेन से आए हैं, अब आगे निकल के जाना है हमें। तो जब तक आप इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन में तब्दील नहीं करेंगे, ये क्लाइमेट की बातें करना है, बेकार का बातें, टाइम ज़ाया करना है अपना भी कि जी क्लाइमेट कैसे चेंज होगी। आप ज़रा जाके देखें मैनग्रूव्स की हालत, केपीटी वालों ने जो हाल किया हुआ है कराची में, ये जो जिस तरह से उन्होंने ये बाई कुलाची के आसपास, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं दोबारा आपसे ये बात कर रहा हूँ कि क्लाइमेट या एनवायरनमेंट लोगों ने बनानी है। आप इसको अमेरिकन एड से या कार्बन क्रेडिट से या इन चीज़ों से आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब और सेकेंडली एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपको रीजन के साथ काम करना पड़ेगा। लाहौर में जो पोल्यूशन हो रही है वो अमृतसर से आ रही है, वहाँ से तो हमारी जंग है। तो अमृतसर से जो पोल्यूशन आ रही है वो कैसे रोकेंगे? हवाओं में तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, वो जलाते हैं, हमारी पोल्यूशन हमारी तरफ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम उस वक्त सही होंगी जब हमारी इथोस सही होगी, हमारी इथोस सही होगी। और ये बात जब कभी आपने किसी जुमे के खुतबे में ये नहीं सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नामदार ने ये कहा था कि सफाई निफ्स से ईमान है। जब वो सफाई निफ्स से ईमान की बात करते हैं तो वो बात करते हैं जिस्मानी सफाई की। उन्हें ये पता है जिसमें गली भी शामिल है, क्योंकि मदीने में गली भी होती थी। उनके दिमाग में सफाई निफ्स से ईमान का मतलब होता है कि अच्छे कपड़े पहन लो, नहा लो, ठीक है ना। सफाई निफ्स से ईमान जब उन्होंने कहा था, वो एक समझदार आदमी आया था 570 हिजरी में, उसने कहा था सफाई निफ्स से ईमान है। एनवायरनमेंट की बात तो वो करके चला गया था, मगर हम जाहिल के बच्चे आज तक ये समझ नहीं पाए कि सफाई निफ्स से ईमान का मतलब शहर होता है। शब्बर साहब ने तो कार्बन वार्बन की बातों को ऐसे ही करार दिया। हालांकि सैयद असद अली शाह साहब हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं, ये बताएंगे हमें कि डेल्टा कार्बन प्रोजेक्ट क्या है, हम कर क्या रहे हैं सिंध के अंदर। इतना कुछ काम हो गया है और वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान वाइड क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकता? प्लीज़ असद साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर having this discussion in this conference and inviting me and this panel. I would have wished that we should have had some younger people in the panel also. I think one of the issue हमारे मुल्क में ये भी है कि हम यंग लोगों को एम्पावर नहीं करते, जो अभी तक 50-60 साल से ऊपर के लोग जो है ना सारा मुल्क भी चला रहे हैं और हर चीज़ में मोनोपोली बनाई हुई है हमने। तो coming to, I think I'll come to the Delta Carbon project, but very briefly आपका जो earlier सवाल है उसको I think address करना बहुत ज़रूरी है। You see, आपका सवाल ये था कि क्या economic growth and environmental sustainability ये conflicting issues हैं या complementary हैं? तो I would say दोनों हैं। There are examples जहाँ पर obviously कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब एनर्जी में आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लें तो जब हम कोल बेस्ड जनरेशन करते हैं विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल, जो पूरी दुनिया कोल की बेसिस पे 100 इयर्स से ज़्यादा, और अभी भी इंडिया चाइना सबसे ज़्यादा पोल्यूटर्स हैं, वो कोल से जनरेट करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का मसला है एनर्जी का है ना, बिकॉज आवर एनर्जी कॉस्ट इज़ वेरी हाई और हम इम्पोर्टेड उसकी बेसिस पे फ्यूल की बेसिस पे हम अपनी बिजली जनरेट करते रहे हैं, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट है, जिसकी वजह से मुल्क नहीं चल रहा। वन ऑफ द मेजर इशू। एंड अनलाइक चाइना एंड अनलाइक इंडिया, वी डिड नॉट डेवलप आवर इंडिजिनियस कोल। इट टुक अस, अगर हम 50 साल पहले कोल डेवलप कर लेते, कोल इज़ द चीपेस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स, राइट, और पूरी दुनिया यूज़ करती है। तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट है। अब हमने जब डेवलप किया तो दुनिया कहती है यू कैन नॉट जनरेट कोल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ कोल बिकॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है। उसमें भी आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट कि वी आर, इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड ऑल्सो। वी आर नॉट पोल्यूटर्स ऑन अ ग्लोबल लेवल। हम तो 1% भी नहीं है हमारा जो इम्पैक्ट है, फुटप्रिंट है कार्बन एमिशंस में। बट एंड वी गेट दी the disasters that we have, one of the most disaster prone countries, overall environmental pollution, वो हमारा कसूर नहीं है।
जो शबर ने बात की वो भी सही है, मतलब हमारा अपना भी मतलब वी डोंट चैलेंज, वी डोंट इम्प्रूव, ये क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल में आती हैं। तो देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो जब हम सस्टेनेबिलिटी की पाकिस्तान में बात करते हैं, देयर आर फ्यू कंपनीज, देयर आर instances in the government where we have, complemented the environmental sustainability and growth. उसका examples जो हैं, ये जो आपने project की बात की, we have this project, Sindh government, has billions of mangroves are being planted. It's the world's largest project, blue carbon delta project, जिसमें $40-50 million गवर्नमेंट ने अर्न भी किए हैं through carbon credits. तो we have that example here, but जहाँ पर we are also getting money. It is providing us economic benefits. There are many companies जिन्होंने अपनी, जो शबर ने example दी, you see there are two reasons, मैं इसको आपको ज़रा conclude करके बताऊं कि private sector में sustainability वो companies करती हैं जहाँ पर या तो जो बाहर buyers बैठे हुए हैं उनकी requirement है, या फिर वो जब देखते हैं कि if we convert from thermal generation to the renewables तो वो ज़्यादा economical है, ज़्यादातर energy में आपको examples नज़र। अब अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो है renewable was very expensive, तो nobody was thinking of sustainability. जब renewables सस्ते हो गए हैं तो everybody is thinking of sustainability. तो बात यह है कि जहाँ पर sustainability complements growth and profitability, वहाँ पर, and there are a lot of areas जहाँ पर करती है अब जो है ना, especially energy side में, तो वहीं आपको नज़र आएगा कि private sector जो है sustainability की तरफ move कर रहा है. लेकिन by and large sustainability सिर्फ बातों से नहीं होगी या requirement मतलब regulations से नहीं होगी. There has to be, the economics and sustainability have to go together. And today the biggest example that I can quote to you is Mr. Trump. He has withdrawn from Paris agreement, right? तो अब वहाँ स्वाय यूरोप के अब कोई बाकी सारी लिप सर्विस ही है ना, environmental sustainability, carbon credits market भी सही नहीं बनी, frankly it's so complex. तो बात यह है कि it's only the European Union and few countries, maybe Japan, few other countries, जो के who really are sold to the idea of sustainability and climate change. US currently, they don't care. They say, first of all, we need to think of our people, their earnings, their growth. Same as China, same as India. So, by and large, that is the situation. True. देखिए आपकी बात दुरुस्त है. देखिए लेकिन उसके बावजूद हमें अब जाहिर है उन टारगेट्स को, हमें इस दुनिया में रहना है और दुनिया जो टारगेट कर रही है से हमें 2030 तक 45% कार्बन एमिशन को ग्लोबली कम करना है, और ये एक टारगेट है पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज वालों की तरफ से, और पेरिस एलानिया यही है. और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अब सवाल करूंगा मिस मैडम आफिया सलाम साहिबा से कि क्या तैयारी हम कर सकते हैं, क्या हो गई है, और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा फ्यूचर में. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आप सबको. हमेशा बहुत खुशी होती है जब ज़ैबिस्ट आती हूँ, यहाँ एक विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पे भी मैं ताल्लुक़ रहा है. अच्छा, मुझे अब आजकल जब भी मौका मिलता है इस मौजू पे कुछ बात करने का, तो जैसे हम कहते नहीं है कि सुई अटक गई है, तो मुझे लगता है कि मैं बस वही बातें दोहराई चले जाती हूँ, लेकिन उनके अलावा फिर मेरे पास कोई बात है नहीं करने की. सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट दो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं.
कचरे से, कुछ जलाने से, गंदगी से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, वो एमिशंस की वजह से हो रहा है, जो कि कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो पूरा आपका मौसम का निज़ाम है वो आउट ऑफ सिंक हो गया है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो वो जो हम पोल्यूशन की बात करते हैं वो काम हैं जो हम गलत कर रहे हैं और उनको हम फिक्स कर सकते हैं, वो करना छोड़ के, ठीक है, उनको फिक्स करके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो तालीमात हमारी, मतलब ये तालीम मिल गई, तरबियत कहाँ चली गई जिसमें हम अपने घर के अलावा भी सफाई का ख्याल रखा करते थे ना, यही हमारी कई नस्लों से यही तरबियत थी, लेकिन हम कहीं वो भूल गए। बट दैट इज़ नॉट द मेन प्रॉब्लम अगर हम क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, इन दोनों पे बात करने की ज़रूरत है, इसलिए कि सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक़ दोनों से है, उसमें एनवायरनमेंट भी आती है और क्लाइमेट चेंज भी आता है। अच्छा, दो तीन कुछ, आप सब बहुत बाशऊर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपके सबके हाथ में ये डिवाइस भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, तो मैं किसी बात की डेप्थ पे नहीं जाऊँगी। आई जस्ट ट्राई टू लैंड अ फ्यू पॉइंट्स, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, रद्द करना चाहें तो रद्द कर सकते हैं, और उसको अगर आप अग्री करें मेरी बातों से। एक तो ये हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज के हम उसमें बिल्कुल, जैसे असद अली शाह साहब ने कहा कि वी आर नॉट द कल्प्रिट्स। 0.85 हमारा % है हमारा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एमिशंस के अंदर, लेकिन जब आप देखें तो ट्रेजेक्ट्री हमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे कहा कि हमारी ग्रोथ एक ज़रूरत है, हम एक बहुत ही ज़्यादा एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो आई डोंट नो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, वो डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन अगर आप देखिए आसपास तो वी आर रियली अंडर डेवलप्ड। शहरों के अंदर आपको नज़र आता है, आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री एंड आई फील यू नो एवरी 150 किलोमीटर्स आई गो, आई एम ट्रैवलिंग इन अ टाइम टनल कि पीछे की तरफ जा रही हूँ मैं। तो वहाँ के लोगों के जो हालात हैं, हमें उन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। उसमें हम क्लाइमेट चेंज के अब इम्पेरेटिव्स क्या हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर को लिमिट करने की बातें थी, वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर बियॉन्ड दैट 1.5 डिग्री, ठीक है, ऑलरेडी 2 से ऊपर जा चुका है। अच्छा, 1.5 डिग्री के ऊपर भी उन्होंने जो बताया था कि उसका फॉल आउट क्या होगा अगर हमने उसको क्रॉस किया, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब जो कन्वर्जेंस है पूरा क्लाइमेट साइंटिस्ट का, या पूरी वो जो फ्रेटर्निटी, नॉट नेसेसरली जस्ट साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एवरीबडी एल्स, इज़ कि वी हैव अ ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस में एक तो आपका क्लाइमेट चेंज के जितने भी वो माइलस्टोन्स हैं, जिसको हम टिपिंग पॉइंट्स कहते हैं, हम बहुत से टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस कर चुके हुए हैं। फिर दूसरा है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपकी हैबिटेट लॉस हो रही है, आपकी गरमाइश की वजह से आपकी जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो आपकी जड़ी बूटियाँ हों, झाड़ियाँ हों, पौधे हों, वो वहाँ नापैद हो जाएंगे। वहाँ के ज़ाहिर है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट आपकी लाइफ फॉर्म्स हैं वो वहाँ नापैद हो जाएंगे। और कोई वजह है कि इसको इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि लिनियर नहीं है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, ठीक। एक ये चीज़ है, और तीसरा ज़ाहिर है पोल्यूशन है। पोल्यूशन का एक अंबार है, पूरी दुनिया के अंदर है। सो हम इसको अब्जॉल्व करने वाली बात नहीं है कि बाकी दुनिया भी इसी तरह से कर रही है, हम भी करें। नो, इट इज़ हर्टिंग अस, तो लेट्स फिक्स द थिंग्स दैट आर हर्टिंग अस। आई टोटली अग्री विद मिस्टर शब्बर के हम पाकिस्तान पे फोकस करें, ठीक है। तो इसमें अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के क्या, इसमें अभी लेटेस्ट जो जर्मन वॉच, एक तो आलमी थिंक टैंक है जो हर साल एक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देता है, बनाता है कंट्रीज़ का। दुनिया में तकरीबन 190 या 186 कंट्रीज़ हैं, 186 आई थिंक UN मेंबर्स हैं, कुछ और उनके अलावा मुल्क होंगे, आप समझे तकरीबन 200 मालिक हैं। वी आर नंबर 1 नाउ। पिछले 1.5 डेकेड से हम टॉप 10 में थे। तो हमारे यहाँ वो जो उसकी रियलाइजेशन है, ये स्पिल ओवर होनी चाहिए पूरी सोसाइटी के अंदर। ये अगर मेरा ताल्लुक एनवायरनमेंट से है तो सिर्फ मुझे ये मालूम नहीं होना चाहिए। आजकल चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, ये उसके मैनेजर्स को भी मालूम होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के क्या फॉल आउट हो सकते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का ताल्लुक किससे है? इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स एन इंडस्ट्री, इट्स लाइवलीहुड्स, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का अब आजकल इसलिए हवाला देती हूँ कि लोग स्पोर्ट्स को एक फ्रिवलस एक्टिविटी समझते हैं ना, कि ठीक है ये कोई ज़रूरी चीज़ थोड़ी है। आसद साहब ने तो आपको बाकायदा इंडस्ट्री का, शबर साहब ने इकोनॉमी का जिक्र किया। लेट मी जस्ट थ्रो द लोअर थिंग कि आजकल हो रहा है, इफ़ देर इज़ अ क्लाइमेट इवेंट हैपनिंग राइट नाउ विच
has the Champions Trophy being cancelled. Can you just see the domino effect of that on your economy, on transportation, on everything? So climate change is intersectional. और जब तक हम इसको इस तरह से नहीं देखेंगे, इसकी इंटरडिपेंडेंस विद दी अदर सेक्टर्स नहीं देखेंगे, आपके स्कूल बंद हो जाते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें. आपने स्मॉग का जिक्र किया. वन मोर थिंग जो मैंने इसका जिक्र किया था कि एवरीबडी हैज़ दिस. So let's not believe whatever we are told, because technology, हम खुद से सच्चे नहीं बने, हमें टेक्नोलॉजी ने मजबूरन सच्चा बना दिया है. Because it reveals कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रेजिड्यू अक्टूबर में जलता है और इंडिया में नवंबर में जलता है. आपकी जो विंड डायरेक्शन है वो पाकिस्तान से विंटर में उस तरफ जाती है. So this is now acceptable in all the Met circles and everybody else कि यहाँ से pollution उधर जा रही है जिसकी वजह से वो smog होती है. But they have taken measures. We can also take. We must also take those measures. बिल्कुल दुरुस्त. तो बहुत अच्छी बात जो मैडम आफिया ने की वो टेक्नोलॉजी के हवाले से की. तो हमारे साथ जो है नवीद अब्बास साहब मौजूद हैं. हम समझते हैं कि ये बहुत सारी जो पोल्यूशन आ रही है वो इनएफिशिएंसी की वजह से आ रही है. तो क्या डिजिटलाइजेशन इस इनएफिशिएंसी को दूर कर सकती है? थैंक यू जी यहाँ बुलाने का भी. और आई थिंक सर ने बात की कोई नौजवानों को बुलाए तो थोड़ा सा थोड़े से नौजवान एक हैं भी. मेरा जो एक्सपीरियंस है जी कोई अराउंड 10 years, मोर देन 10 years ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर डिजिटलाइजेशन है. और स्पेशली अब उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ट्रेड है. और इनिशियली हमने स्टार्ट किया था जो कस्टम्स का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डिजिटलाइज कराने के लिए. और अब हम पूरे ट्रेड के जो इकोसिस्टम है उसको हम डिजिटलाइज कराने की तरफ काम कर रहे हैं. इसमें एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से जो कि शब्बर साहब भी चेयरमैन थे. उस दौर में भी ये आगे बढ़ता रहा. बट इसका फिर एक एक्ट आया, पार्लियामेंट से पास हुआ. अब जब हम सारी डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो अगर पॉलिसी लेवल की बात करें तो जो हमने एक फ़ॉलो किया, एक जो पैटर्न फॉलो किया और जो कि आई थिंक हमें सक्सेसफुल भी लगता है और उसको आगे जाके मैं इससे भी लिंक करूँगा क्लाइमेट से भी. तो वो जब एक्ट पास हुआ तो हमने उसमें पूरे ट्रेड के इकोसिस्टम को कवर किया. स्टार्टिंग फ्राम अगर कोई किसी भी मुल्क के वेयर हाउस से कोई कंसाइनमेंट चलता है किसी भी वेयर हाउस से, तो उसके बाद अगर किसी वेसल पे या किसी एयरलाइन पे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपके बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंकिंग साइड है ट्रेड फाइनेंस की, वो भी हमने उसमें शामिल किया. और फिर उसकी जो लोकल कंप्लाइंसेस हैं वो भी सब की, जिसमें एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस भी शामिल हैं, जिसमें राइस की कंप्लाइंसेस भी हमने कवर किए हैं कि यहाँ से वो डिजिटलाइज्ड वे में हों. और आगे जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनको हम एक ट्रस्टेड किस्म का डॉक्यूमेंट दें और वो सर्टिफाई करें कि ये कंप्लाइंसेस जो इंटरनेशनल ग्लोबल कंप्लाइंसेस हैं वो भी उसमें पूरी हुई हैं और लोकल कंप्लाइंसेस भी उसमें पूरी हुई हैं. तो उस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया. अब उसका मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे दूं कि हमने एक स्टडी कराई थी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के उनके ताउन से. तो उन्होंने जो हमें एक एस्टिमेट दिया कि अराउंड सिर्फ क्योंकि एयर साइड पे हमारी बिल्कुल कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है, पूरा जो कार्गो का साइकिल है वो पूरा मैनुअल है. तो अराउंड 76 मिलियन पेपर शीट्स सिर्फ यूज़ होती हैं आपका जो 1 year में. अगर आपका पूरा जो कार्गो साइकिल है उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 1 year में हमारी 76 मिलियन पेपर शीट्स हैं तो हम अब तक कितनी पोल्यूशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैला चुके होंगे. और अगर हम मैरीटाइम सेक्टर को देखते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा है. तो डिजिटलाइजेशन का जो रोल है उसमें अगर आप IoT, एमिशंस और इन सब चीज़ों को लेके तो एक तरफ इन्वायरमेंटल साइड हो गई जहाँ पे शायद हमें टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. और फिर जो दूसरी साइड इकोनॉमिक ग्रोथ की, अगर उसमें हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं आते हैं तो अगर हमारा एक सिर्फ सस्टेनेबिलिटी तो शायद दूर की बात है, हम अब उसमें कॉम्पीट भी ना कर सकें. हमारी जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो इतनी इनकॉम्पिटिटिव हो जाएं कि हम शायद कहीं बेच भी ना सकें. सस्टेनेबिलिटी आई थिंक हमारे लिए शायद सर ने शब्बर साहब ने भी जो बात की थोड़ी सी दूर की बात है. हम सर्वाइवल मोड में हैं हमारे पास, लेकिन उस सर्वाइवल मोड का आई थिंक एक उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कुछ करने की. कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ हम लेकर आएँ
और आई थिंक हमारा बड़ा इसमें सक्सेसफुल एक ये रहा है, हम कोई 3 से अब 4th ईयर हमारा चल रहा है ग्रोथ का, उसमें हमने 15 डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज्ड किया है, और अब हम पोर्ट की साइड के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। अराउंड कोई मोर देन 20 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोसेसेस को हम अभी तक डिजिटलाइज्ड कर चुके हैं, और वो जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में, और अब वो डॉक्यूमेंट्स हम फिर एक इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज तरीके हैं डॉक्यूमेंट शेयरिंग के, डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पे आप भेज दें, आपको पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अब उनके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चले जाएं। अब दूसरी जब हमारी एक बात भी हो रही थी ग्रुप पे कि डिजिटलाइजेशन के अपने भी इन्वायरमेंटल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो लेकिन दुनिया ने उसको भी आई थिंक इतनी अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है कि आपके जो डेटा सेंटर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं, तो आप उन चीज़ों को, आप सर्कुलर इकोनॉमी पे चले जाएं तो आपकी रीयूजेबिलिटी और उन तरीक़ों से आप उनको कम कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक हमारा तो शायद अब वो भी कंसर्न नहीं है ना कि हमारे पास तो अभी न होने के बराबर चीज़ें हैं दुनिया में। डेटा सेंटर्स आपकी आजकल की दुनिया की तरक्की का राज हैं। डेटा इज़ एक्चुअली द गोल्ड माइन नाउ, लेकिन आपके पास डेटा सेंटर्स की, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स की एक कैटेगराइजेशन है इंटरनेशनली, Tier 1, 2, 3, 4। पाकिस्तान में Tier 4 तो न होने के बराबर है, जिसको इंटरनेशनली अमेज़ॉन या अलीबाबा वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं, तो वो तो आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक भी डेटा सेंटर नहीं है। आपके पास Tier 3 के हैं, अगर Tier 3 भी अब कराची में देखते हैं तो आपको सिर्फ 2 डेटा सेंटर मिलते हैं। तो हमारे पास तो अभी उस तरफ सोचने का टाइम ही नहीं है कि हम उनके इन्वायरमेंटल साइड्स को देखें। हमारे पास एक्चुअली अभी कुछ है ही नहीं कि हम उनको फिर एक पॉलिसी के ज़रिए हम डेटा सेंटर्स की भी रिन्यूएबल साइड को कैटर करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, टैक्स क्रेडिट्स दें, या जो भी करना है उनको उन साइड्स पे ले आएँ। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर कोई हमारी सरशब्बर भी बैठे हुए हैं गवर्नमेंट साइड पे या जहाँ पे भी हम बात करते हैं, तो हम इस बात को अभी से ले जाएं कि जी आपने अगर इन सब चीज़ों को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है तो फिर हम इनको इंसेंटिवाइज़ करें। आपको डेटा सेंटर्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो रिन्यूएबल पे आ जाएं, आप इसको सर्कुलर इकानमी को इंसेंटिवाइज़ करें। तो आई थिंक डिजिटलाइजेशन के अलावा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, आई थिंक वी हैव डन सक्सेसफुली। और आई थिंक हमारे पास भी अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी डिजिटलाइजेशन के अलावा करने का और कोई तरीका नहीं है। चाइना का एग्जांपल आप देख लें, शंघाई आपका किसी दौर में बिल्कुल इनहेबिटेबल हो चुका था, लेकिन अब आप शंघाई जाएं तो आपको टोटली माहौल दूसरा मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। तो शब्बर साहब, अब हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात कर लें। अगर हम इसको अदर वे राउंड देख लें, हमारा एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव कर जाए, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाएं, हम दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स गुड सर्विसेज वो इंक्रीज़ कर लें, बजट डेफिसिट पर काउंट फॉर कर लें, तो क्या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती है? मतलब हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को फोकस करें, उससे ऑटोमेटिकली आप जिस तरह असद ने कहा था कि दोनों एट टाइम क्लैश करते हैं, और इसीलिए मैं, पता नहीं आपने मुझे इस सेशन में क्यों बुला लिया, मैं तो इस सब्जेक्ट पे कभी बात करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं इस मैटर में ट्रम्प के साथ हूँ। और हमारा ये सारा जो कहानी है, ये जो हम जो सारी क्लाइमेट चेंज की और ये सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमें उस फंड में से जो बना हुआ है उसमें से 4 पैसे चाहिए। हमारा इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको वो भी नहीं मिल रहे ना। हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं? हम ये कहानी इसलिए नहीं कर रहे कि हमें एनवायरनमेंट से कोई दिलचस्पी है। ये बीरीत पाकिस्तान जो डॉन ने किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमें कोई दिलचस्पी है, इसलिए किया था कि जो फंड बना हुआ है इंटरनेशनली उसमें से हमें 4 पैसे मिल जाएं। मगर वो भी ऐसा सही कह रहा है, मिलने वाले नहीं हैं, तो आप पैसे टाइम ज़ाय कर रहे हैं। ठीक है, मेरा तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। तो मैं पाकिस्तान में ये कार्बन एमिशन और ये जो है सस्टेनेबिलिटी और ये चीज़ों को इनफैक्ट क्लैश में देख रहा हूँ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के। जिस ग्रोथ पे मैंने जाना है, जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ। आप थर्ड कोल की बात कर रहे हैं, असद ने बिल्कुल सही बात की। मेरे पास थर्ड कोल के अलावा कोई सस्टेनेबल बिजली का सोर्स नहीं है अगर मैंने कम्पीट करना है तो।
अब थर्ड कोल क्लाइमेटिकली गुड है या बैड है, ये तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा ना, ये तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। मुझे तो थर्ड कोल चलाना है, दैट्स ऑल। मुझे अपने लोगों को जिंदा रखना है, माहौल बाद में देखी जाएगी। हमारी सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट है ना जी, हमारी सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट है ना। हमें तो थर्ड कोल चलाना है, हमें तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री चलानी है, चाहे वहाँ पानी का लेवल जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम अंग्रेज़ी सस्टेनेबिलिटी वाली बोल रहे हैं या जो हम अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ी चलने वाली नहीं है। तो अगर हम अपना माइंड थोड़ा चेंज करें और ये फैसला करें कि वो जो पैसे वहाँ से मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। अगर मिलेंगे तो मुझसे पूछ के मिलेंगे, अगर मैं कहूँगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैसे से पूछेंगे हमसे पहले वो कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो आप पैसे उस पैसे को भूल जाएं और अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेंस के ऊपर बात करें कि आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कहाँ खड़ी है। आपका जो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सर कि आप एक तरफ एक चीज़ ऐलान कर देते हैं, उड़ान पाकिस्तान। अब उड़ान पाकिस्तान की कागज़ IMF के कागज़ से नहीं मिलते। आप उड़ान पाकिस्तान का जो कागज़ है वो IMF की जो प्रोजेक्शन है 5 साल की, वो भी तो उसी की है ना, उसी चीज़ की है ना। तो उड़ान को मिला के देखें, वो मिलते नहीं हैं आपस में। तो मेरी तो सिर्फ एक दरख्वास्त है कि पहले तो आप सारे मिलके एक फ़ैसला करें कि आपने सच बोलना है। झूठ बोल बोल के आप लोगों के साथ तक है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है कि मेरी अगर एक्सपोर्ट की प्रोसीड 60 या 60 से कम होती है अगले 2-3 साल के अंदर, तो मैं कोई सी भी पोजीशन लगा लूं, ये मुल्क सस्टेनेबल नहीं है। मुझे 60 पे जाना है, 60 के आसपास पहुंचना है मुझे। और अगर आप 60 की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कर लें, आपका कैश बैलेंस पूरा नहीं हो रहा। ये सिंपल फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर की बात है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी मैंने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और मैंने डिफ़ॉल्ट पे ले आया और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। ये बकवास है सब। आपको आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 चल रही है। आप $1 मिलियन के ऊपर रोज़ाना शाम को बकवास करते हैं कि जी आज करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया 300 मिलियन, कभी करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया 200 मिलियन। 1990 में वियतनाम की एक्सपोर्ट 10 बिलियन थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी 10 बिलियन थी। आज वियतनाम की एक्सपोर्ट 600 बिलियन है, 600। हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। बकवास हमारी ख़त्म नहीं होती। एनवायरनमेंट की हम बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बातें कर रहे हैं, ब्रीथ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, कौन सी हवा चाहिए तुम्हें यार? जब रोटी नहीं है तो हवा कहाँ से आएगी यार? रोटी नहीं, पहले रोटी खाओगे ना, हवा तो बाद में आएगी यार। खुदा का वास्ता है, रोटी नहीं है यार खाने को, क्या बात है? रोटी अगर पॉल्यूटेड मिलेगी तो मेरी सेहत अच्छी नहीं होगी। सेहत तो बाद में आएगी, पहले जिंदा तो रहो। पहले जिंदा तो रहोगे तो रोटी अच्छी सेहत रहेगी। ये कह रही है मैं एक सेकंड मेरी बात। 24 घंटे तक आप शायद खाने के बगैर रह सकते हैं, हवा के बगैर शायद नहीं। तो वो देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो हम एनवायरनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने कहानी शुरू की थी पैसे लेने के लिए, वो पैसे नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, हमें जो फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली सस्टेनेबल पोजीशन में खड़ा है या नहीं खड़ा आज। ट्रू। और इस पर हमें बिल्कुल ओपन क्लियर बात से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हम इस तरफ देख रहे हैं या उस तरफ देख रहे हैं या इस तरफ देख रहे हैं। और उसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ बार बार कि उसके लिए हमें एक्सपोर्ट को 60 बिलियन या 55 बिलियन पे लाना ज़रूरी है। उसके बगैर हमारे डॉलर पूरे नहीं हो रहे। कैसे लाएं, कैसे डबल करें? अब आते हैं, मैं उसके बाद कैसे आते हैं। अच्छा, उसकी दो तरीके हैं। जो पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। एक्सपोर्टेबल सरप्लस मुझे क्या चीज़ बनाऊंगा तो मैं क्या बेचूंगा। मैं इस वक्त 4 कंपनियों में बोर्ड पे बैठता हूँ। 2 कंपनियाँ IT की हैं और 2 कंपनी टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। I was a member of the board of systems. I am sitting directly in the TRG also, and I am in the Kodu textile mill, and I am also on the other textile mill.
अब मैं ये देखता हूँ, टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली वहाँ पर अब मेरे पास जगह नहीं है। मुझे कॉटन भी अच्छी क्वालिटी की इंपोर्ट करनी पड़ती है एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहता हूँ ना, जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहता हूँ, अगर वैल्यू एडिड, तो मेरे पास कॉटन नहीं है जिससे मैं वो धागा बनाऊँ और धागा बना के कपड़ा बनाऊँ। तो मुझे, मेरा जो एक्चुअली प्रॉब्लम आ गया है वो ये आ गया है कि मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारे पास कॉटन है, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। मेरा जो आज जो सबसे बड़ा, अगर आपको पता है, जो सबसे, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, उसको शायद आप में से कोई नहीं जानता और वो कभी टीवी पे भी नहीं आता। उसका नाम है स्टाइल टेक्सटाइल लाहौर। शायद आप में से कोई नहीं जानता। उसकी एक्सपोर्ट, स्टाइल की एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, इंटरलूप से ज़्यादा है। 650 या 670 मिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है। ठीक है, वो क्या बनाता है? वो नाइके और एडिडास के लिए मोज़े बनाता है, और नाइके और एडिडास के मोज़े जब बनाता है तो उसकी जो यान आती है वो आती है इंपोर्टेड कॉटन से। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जो वैल्यू एडिड आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि उसके पास जो, पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को देखें, और ये कभी आप अलग सेशन करिएगा, आप आज जाएं, सब वेबसाइट पे जाएं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को निकालें कि एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2024 कौन है। सबसे पहले आपको नज़र आएगा स्टाइल, सेकंड नज़र आएगा इंटरलूप, उसके बाद लकी आएंगे, वंशा आएंगे, सफ़ायर आएंगे। आप ये देखेंगे कि ये इंटरलूप और स्टाइल दोनों, ये कोई 1990 और 2000 के बाद पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम एक्सटाइलों की वालों की ऐसी की तैसी फेर दी है। क्यों? इसलिए फेर दी है कि वो काम करते हैं, मीडिया पे नहीं आते, और इसलिए फेर दी है कि उनके पास वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज हैं। इंटरलूप वाला जो है वो पहले सुई गैस पे काम करता था। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते हैं बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, तो हम स्टॉक ब्रोकर को बुला के बैठा देते हैं यहाँ पर कि ये बिजनेसमैन है। वो स्टॉक ब्रोकर होता है, वहाँ जुआ खेल रहा होता है शाम को जाके स्टॉक मार्केट में। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? कभी आपने पता किया कि एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है पाकिस्तान का? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताओ, स्टाइल वाले का ओनर जो है वो कौन है? इनकी पहले परफ्यूम की बिजनेस थी। They were perfume business in India. What I am trying to say कि the problem with the Pakistan exporter is कि जो एक्सपोर्टर है उसका अपनी एक्सपोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट ये है कि मेरे पास 2 नंबर पैसे बाहर कैसे आ जाएं, मैं 2 नंबरी कैसे करूं, एप्टिवा से पैसे कैसे पकड़ लूं, रिबेट कैसे पकड़ लूं, ये कैसे करूं। जो आदमी जेन्युइनली काम कर रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, उनके पास पैसे हैं और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहली बात तो एक्सपोर्टर को आपने जगह देनी है, उसमें प्रोफेशनलिज्म लानी है, उसमें से ये माफिया जो बैठी हुई है एप्टिवा टाइप की, इनको निकालना है, तो आपकी एक्सपोर्ट ठीक हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने आज तक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है फिजिकल? आज तक कभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कोई फैसिलिटी दी थी? ठीक है, कि मैं अगर चाहता हूं कि मैं बनाना चाहता हूं बीपीओ, तो मुझे कोई गवर्नमेंट ये प्लॉट दे दे कि यार ये प्लॉट आपके लिए फ्री है, यहाँ आप शेड बनाएं, लड़कों को बिठा के बीपीओ करें। कभी आज ने सोचा है? आपने सुना है? कभी आपने सुनी ये बात? मेरी जो कंपनी इंडिया में थी, PricewaterhouseCoopers, उसको इंडिया वालों ने 4.5 एकड़ ज़मीन दी थी बीपीओ बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि यार आप यहाँ बीपीओ बनाएं और चलाएं। हैदराबाद दक्कन में क्या हुआ? तो ये तो आप किस दुनिया में बैठे। अच्छा, आप अल्लाह का शुक्र है तो अगर आप ये जाएं, अभी ये शारा फैसल पे जाएं, तो वहाँ एक IT पार्क बना है, देखा होगा आपने। मगर मुझे तो वहाँ डालने से डर लगता है, फौजियों का है, मैं अंदर नहीं जाता, मगर बाहर से अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, हाँ सुना है, अंदर गए। देखिए, तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको IT पार्क बना के लोगों को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जगह देनी पड़ेगी। मतलब आप ये कहें कि 2000 गज का प्लॉट है, आप ले शहनाज साहिबा, और आप यहाँ बिल्डिंग बनाएं और यहाँ से आप IT की एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप BPO की एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप मेडिकल की एक्सपोर्ट करें, ये करें। आज आप बंदों को कहाँ बिठाएंगी? आप शारा फैसल पे इतना महंगा कैसे ले सकती हैं?
तो ये ह्यूमन सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है आपको सोसाइटी को, वो हम नहीं दे रहे। आफिया मजीद पाक और कोई मरियम साहिबा को तस्वीरें खींचती रहती है, इनको कब समझ नहीं है। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, अगेन आई एम सेइंग, प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज कि जो पाकिस्तान में डिसीजन मेकर है और पाकिस्तान में रूल करता है उसको एक्चुअली पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं ना कि आज कभी मीटिंग में आपको स्टाइल टेक्सटाइल का ओनर मिलेगा ही नहीं। आपने किसी ने नाम नहीं सुना होगा ना, किसी ने नाम नहीं सुना ना कि क्या चीज़ है वो। ही इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, द क्वेश्चन दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब आप सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसका दूसरा जो है, आखिरी बात में ख़त्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान को 2 जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक नॉर्दर्न पाकिस्तान जो कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करेगा और वहीं कंजम्पशन होगी, और एक होगा सदर्न पाकिस्तान जो वियतनाम और चाइना के लिए बाहर के लिए से इंपोर्ट करेगा, यहाँ फैब्रिकेट करेगा और आगे एक्सपोर्ट करेगा। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। मैं सूबे बनाने की बात नहीं कर रहा। जो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट है, ये 1000 मील से मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ सोडा ऐश की। 1000 मील से सोडा ऐश को मैं कराची लाता हूँ और कराची ला के जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे कॉस्ट वारा नहीं खाती। ठीक है, और सिमिलरली जब यहाँ से मैं फैसलाबाद ले जाता हूँ मुझे वारा नहीं खाती। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी को डिवाइड करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है वो अपना बनाएगा और अपना करेगा, और सदर्न पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल और यहाँ प्रोसेस करेगा और आगे बढ़ेगा। अगर आपको पाकिस्तान को चलाना है, अगर नहीं चलाना तो आपकी मर्जी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी असद अली शाह साहब, आप बताइए सस्टेनेबिलिटी। वैसे देखिए, समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी जो है ये प्रोटोकॉल्स तो ज़रूरी है ना। हम नहीं कह रहे कि थर कोल को बंद कर दें आप या कार्बन को, तो आप मतलब प्रोटोकॉल्स तो अडॉप्ट करें ना। बात यह है कि आपने 2 अकाउंटेंट्स को बुला दिया इस कॉन्फ्रेंस में और अकाउंटेंट्स का काम जो है ना वो ज़रा फैक्चुअल होता है और हम बैलेंस भी करते, वैसे बैलेंस भी करना होता है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस व्यू है मेरा शब्बर के साथ वो ये है कि यू नो इट्स ट्रू, और इस टॉपिक में भी आप देखें इट्स नॉट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज बाद में। और सस्टेनेबिलिटी जो है द डिफरेंस बिटवीन अस यू नो पुअर कंट्रीज़ जिनके पास मतलब हर चीज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग में हमारी लिमिटेशंस हैं, and those who have already acquired sustainability and who are rich, you know, like Europeans, तो वो प्लैनेट की बात करते हैं, वो सोच रहे हैं ये जो सस्टेनेबिलिटी वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि 50 साल 100 साल के बाद अगर ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये प्लैनेट को बड़ा रिस्क है, हम कैसे, हमारे बच्चे कैसे ज़िंदा रहेंगे या हमारे यू नो डिसेंडेंट्स कैसे ज़िंदा रहेंगे। So climate change is more about future, and also it affects more to countries like us जो कि disaster prone हैं, floods वगैरह, और उसमें जो हमें ज़्यादा impact आता है। But for us again पाकिस्तान perspective, हमारा जो सबसे बड़ा issue तो ये है ना कि हमारी 40% people are living below the poverty line, you know। हम बिजली की अगर बात करें तो हमारे 30-40% लोग जो हैं ऑफ ग्रिड हैं, उनके पास तो बिजली भी नहीं है, और वी आर वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा यू नो कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। तो पहले तो आप बिजली दें ना, अगर आप बिजली नहीं देंगे तो जिंदगी, अभी हमारा इशू सस्टेनेबिलिटी का करंट है, हमारे पास लर्निंग पॉवर्टी है, हमारे पास फूड पॉवर्टी है, यू नो बिजली नहीं है। तो we have to divide it in 2 kind of thing. Obviously we have to talk sustainability, Shabbar, we can't just say environmental
बात तो हमें करनी पड़ेगी ना, बिकॉज जो हमारा कंज्यूमर है, जो आप दो एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हो, उसमें से एक तो सोशल मीडिया पे मैं रोज़ देखता हूँ उसको, मुसद्दिक को, जो है इंटरलूप तो है ना सोशल मीडिया, और वो ज़ाहिर है यूरोपियंस को बेचता है, तो ही हैज़ टू कंप्लाई विद दो स्टैंडर्ड्स। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमें कहीं लिप सर्विस भी करनी है, हमें सस्टेनेबिलिटी की और क्लाइमेट चेंज की बात भी करनी है, बट एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ये चीज़ वहाँ करेगा जहाँ उसको फ़ायदा होगा, जहाँ उसको फ़ायदा होगा। तो फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव, we have to obviously increase our exports, we have to increase our growth, we have to reduce poverty, we have to reduce learning poverty, we have to, हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमारे 40% of our children are stunted। तो हमारे लिए जो sustainability है वो urgent है ज़्यादा। True। तो we have to combine and balance it in a manner कि हम जो है कुछ जो इन्वायरमेंटली इतने पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स नहीं है, लाइक अगर हम कोल को और ज़्यादा इन्वायरमेंट मतलब उसको स्केल अप करें, जो कि हमें प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज फाइनेंसिंग नहीं मिल रही है, तो हमारी बिजली का मसला हल हो सकता है। अगर देखें ना, थर्ड इज़ द चीपेस्ट बेस लोड, लेकिन उसमें हमें फाइनेंसिंग नहीं मिलती। हम तो कितने 30-40 मिलियन टन्स हम बर्न करते हैं, इंडिया हमसे 20 टाइम्स ज़्यादा बर्न करता है कोल, और चाइना जो है अगर हम 20-30 मिलियन टन्स, तो वो तो 4 बिलियन टन्स एवरी ईयर चाइना बर्न करता है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए वो ग्रीन इंडिया की भी बात करता है, वहाँ बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक्चुअली जो उनकी सारी इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड है। बिल्कुल सही। तो वी हैव टू हैव अ प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी वेयर ऑब्वियसली जहाँ पर environmental, obviously we have to care about the planet, we have to talk about that, तो and there are a lot of projects जहाँ पर it makes lot of economic sense, you know, to make them environmental friendly। मतलब renewables have now become very very economically sustainable। हमारी जो urban planning है, हमारी we are one of the most arid countries, तो हमें अपने पानी को जो है इस तरीके से मैनेज करना है कि हम फ्लड से भी बचें और हम उसको वेस्ट भी ना करें। हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें मॉडर्न एग्री, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये जो बात कर रहे हैं हमारी कि कॉटन नहीं है, हमारी सारी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। इस साल वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम I think these months is that we have to import lot of cotton now. True. Apart from the good quality, जो अपनी quality, एक तो हमने quality भी अपनी improve नहीं की है। तो बात ये है कि the answer lies in the basics. True. We have to make our policies based on common sense, and obviously we have to please our customers also. True. True. Thank you. तो dear audience, ये इल्म के समंदर इस वक्त मौजूद हैं। हम इससे फ़ायदा उठाते हुए हम ये चाहेंगे कि अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ जी प्लीज़ जी मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन रादर टू कमेंट। all learned speakers have talked very nicely, and I have learned a lot from them as well. मेरा शब्बर साहब से और फिर हमारे जो नवीद साहब हैं जो गवर्नमेंट में हैं डिजिटल के हवाले से। शब्बर साहब, आपने जो लिस्ट बताई, स्टाइल टेक्सटाइल नंबर 1 है एक्सपोर्ट में, इंटरलूप है, कुछ मल्टीनेशनल भी हैं जो मेरी नॉलेज में है, लाइक H&M, इंडीटेक्स, जो कि $800 मिलियन से ज़्यादा की उनकी भी एक्सपोर्ट है। तो एक तो ये था कि वो मल्टीनेशनल आपने शायद शामिल नहीं की उसमें। जो मेरा सवाल था कि जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों कंपनियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मेरे बेटा वहाँ काम करता रहा है। तो हम सिर्फ रॉ को एक्सपोर्ट हम भेजते हैं बांग्लादेश में, जहाँ पे वैल्यू एडिशन बांग्लादेश में होती है। तो इस पहलू पे आप ज़रा मुझे बताएंगे या सब लोगों को बताएं कि ये भी कितना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है कि रॉ मटेरियल यहाँ का है लेकिन वैल्यू एडिशन ढाका में जाके हो रही है उसकी। और एक चीज़ जो नवीद साहब, चूँकि डिजिटल से आप गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है आपका,
मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी ग्रीन एनर्जी पे डेनमार्क में, तो वहाँ पर जो कंक्लूजन हुआ था, इट वाज आल्सो टू माय वेरी सरप्राइज कि ये मुझे भी नहीं पता था, अगरचे कि मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या उसके पार्ट्स हैं जो एक ख़ास टाइम के बाद एक एमिशन शुरू कर देते हैं और वो बड़ी पॉइजनस होती है, ख़ास तौर पे CRT या वो चिप्स जिसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, जो कि हज़ारों करोड़ों चीज़ें ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर, तो हर उनकी पॉलिसी है कि हर 5 साल बाद वो तो रिप्लेस करा देते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, और उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट भी किया हुआ है। शायद ये पॉइंट इतना डिस्कस नहीं हुआ किसी भी फोरम पे, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो चाइना, अमेरिका, ये इनके पास ये चीज़ें तो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय करने की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। शायद 1/3 है चाइना में जितना वो प्रोड्यूस करता है, और 5 साल के बाद अगर उसको ख़त्म करना है तो 1/3 फैसिलिटीज़ हैं, जो मैंने अभी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो करते क्या हैं कि वो थ्रो अवे प्राइस पे या समटाइम ज़ीरो प्राइस पे वो कहते हैं आप बस उठा के ले जाओ। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ये वहाँ से जाके तकरीबन फ्री में वो सारी चीज़ें ले आते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर बड़े सस्ते दाम से मिलते हैं चीज़ें, वो बहुत सारी जगहों पे मिलती हैं। सर एक कंप्लीट होने दे, 1 सेकंड है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में जब इस्तेमाल होती हैं और उसमें से न सिर्फ ये एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, बल्कि उसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए या उसके लिए कभी आपने सोचा है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, एक चीज़ को आप समझें एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग नहीं समझते। जब आप कमोडिटी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगी। कमोडिटी का मतलब होता है कि कमोडिटी का कोई ब्रांड नहीं होता। चावल है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता, चावल चावल है, ठीक है। यान यान है, 21 काउंट का यान है, और इवन सॉक्स भी जो हैं वो कमोडिटी है। पैसे जब मिलते हैं, जब वैल्यू एडिड होता है, शर्ट होती है, ज़ारा की शर्ट है, लिवाइस की जीन है। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ब्रांड से कमोडिटी में चला गया, उल्टा चला है। हम उल्टे चले गए। हम एक ज़माने में कभी ब्रांड की एक्सपोर्ट किया करते थे थोड़ी बहुत, अब पाकिस्तान की 95% एक्सपोर्ट कमोडिटी की है। कमोडिटी का मतलब ये है कि मैं बेड शीटें बेच रहा हूँ 500, और वो जर्मनी में जाकर किसी ब्रांड के तहत बिकती है। ये बात आपसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान कमोडिटी का एक्सपोर्टर है। जब कमोडिटी की एक्सपोर्ट होगी तो कभी आपको प्राइस नहीं मिलेगी, ठीक है। ब्रांड की एक्सपोर्ट जब होती है वो टेक्सटाइल की होती है, वो वैल्यू एडिड की होती है। टेक्सटाइल वैल्यू एडिड बनाने के लिए आपको लेबर इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। लेबर जब इन्वॉल्व करनी पड़ेगी तो आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश की टेक्सटाइल की लेबर में 80% औरतें हैं, और आपकी औरतें यहाँ बच्चे पैदा करती हैं और घर में रहती हैं। तो आप ये पाकिस्तान की बात नहीं करें, ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। आप चले जाएं साइट पर, आप चले जाएं कोरंगी पर, आप चले जाएं लांडी पर। क्या कोई शरीफ लड़की लांडी में जाके काम कर सकती है? कोरंगी में काम कर सकती है? साइट पे जाके काम कर सकती है रात की शिफ्ट में? तो जब वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल में उस वक्त होती है जब वहाँ लेडीज़ वर्कर होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपने तालिबानाइजेशन के तहत लेडीज़ वर्कर को आउटसाइड दिस सिस्टम कर दिया है। हर इंडस्ट्रियल एरिया के सामने एक बड़ी सी मदरसा मस्जिद है। अभी ये खातून दाखिल हुई हैं पूरी तरह हिजाब में। मुझे कोई एतराज़ नहीं है उनके होने पर, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मैं वो मर्द हैं या औरत हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे सच बोलने की बीमारी हो गई है, ठीक है। नहीं तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बातों को समझें। आप जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो पहले अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझें मैं क्या कह रहा हूँ। आप जाके बांग्लादेश की इंडस्ट्री को जाके खोलें और देखें वहाँ कौन काम कर रहा है, मर्द काम कर रहा है या औरत काम कर रही है। क्या आपके माशरे में, आपके कल्चर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में औरत काम कर सकती है? बताएं मुझे।
अभी वो टीचर वाले बैठे हुए बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी उनकी बात पर कि ये क्या कर रहे हैं बातें। तो बात व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं वो एक एजुकेटेड रिफाइंड सोसाइटी है, आप एक तालिबानाइजेशन ट्राइबल सोसाइटी है। पहले अपनी सोसाइटी का एथोस चेंज करें, फिर आपकी इकोनॉमिक्स चेंज होगी। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ बैठ के अच्छी लगती हैं। थैंक यू। सर अगर लीगली देखें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और यूज्ड चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स लीगली अलाउड नहीं है, बैंड हैं। अगर कोई इस तरीके की डंपिंग होती भी है और आपको कोई भेज देता है तो पाकिस्तान उनको वापस भेज भी सकता है। अगर कोई वाकई कोई कस्टम्स की साइड पे कोई मिसडिक्लेयर्ड चीज़ों को कोई अलो नहीं करता क्लियरेंस, तो जा भी सकती हैं। बट दुनिया में अब इस तरह की चीज़ों को ना रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाता है कि वहीं पे आप प्रोड्यूसर को बाउंड कर दें कि भाई आपने 3 साल के बाद इस प्रोडक्ट को वापस, अगर जब उसकी यूजेज पूरा हो जाता है तो आप ही ने ले लेना है। तो वो लेके जो प्रोड्यूसर है उसी प्रोडक्ट को खुद ही रीयूजेबल बना के वापस मार्केट में ले आता है। बट एज़ फार एज़ पाकिस्तान का जो एंड है उसमें इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप क्वालिटी का कोई डाटा सेंटर की बात करते हैं, अगर कोई क्वालिटी की प्रोडक्ट है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती। हमारा स्टिल मसला वही सर्वाइवल का है कि चीप चीज़ों के लिए इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत रिपेयर करके किसी छोटी चीज़ों में शायद यूज़ कर लेते हों, वो भी हमारा अपना इकोनॉमिक मसला है। ये उनका मसला नहीं है। स्टिल वहाँ पे उसकी अब रीयूजेबिलिटी पे या रिन्यूएबल की तरफ सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये स्टिल एडमिनिस्ट्रेटिव मसला हमारा है। और अगर हम इसको अलो ना करें तो आई थिंक कोई इस तरह की डंपिंग यहाँ पे कर नहीं सकता। जी प्लीज़, एनी अदर क्वेश्चन on the protocols of the climate change. So I see a contradiction in that. So interloop की example ले लें, दूसरी example ले लें. So by whether you like it or you do not like it, we have to. So I want to get the answer that how is it possible that we discard the world where the world is moving towards sustainability and still we hope that the world is going to accept our export. That's not possible. That's my question. मैंने तो ये बात की ना, एक मिनट शबा, I said exactly the same thing कि जहाँ पर जो businesses हैं जिन्होंने यूरोप में बेचना है, उनको तो मतलब ये है कि environmental standards को comply करना ही है ना, otherwise बिक नहीं सकती आपकी चीज़ें. So, but at the same time, we also have to do things which are more economical, but may not be acceptable. India भी यही करता है, China भी यही करता है, पूरी दुनिया यही करती है, Trump भी यही कर रहा है कि जहाँ पर अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इकोनॉमी का, तो वहाँ पर वो जो है ना वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, विच आपने डिजिटाइजेशन की जो बात की है. सी, वी आर नाउ इन अ वर्ल्ड जहाँ पर वो कहते हैं ना डेटा इज़ द न्यू ऑयल, जो आप बात कर रहे थे, डेटा इज़ द न्यू ऑयल एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की में जो इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं, दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है. इफ़ वी डू नॉट बिकम डिजिटल एंड एम्ब्रेस दीज टेक्नोलॉजीज़, तो हम एंड अदर कंट्रीज, इवन बांग्लादेश, आपको बताऊं ये जो बांग्लादेश की जो एडवांटेज है, जो इट्स ट्रू दैट रिलेटिवली स्पीकिंग दे हैव एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट किया है, लिटरेसी बेहतर है और औरतें काम करती हैं वहाँ पर, फीमेल एम्पावरमेंट है वहाँ पर. बट द थिंग इज़ उसकी जगह पर रोबोट्स काम करेंगे. आगे जो दुनिया है, इफ़ वी डू नॉट embrace artificial intelligence and digitization, then sustainability ख़त्म हो जाती है हमारी. और दूसरी ये मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो environmental climate change का issue है, by the way, इसको एड्रेस जो है ना वो भी टेक्नोलॉजी करेगी. देखें, टेक्नोलॉजी, AI इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ एनर्जी, दे यूज़ लॉट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल से अभी नहीं आ सकती इन द फोर्स. और जो ये रेस आपने अभी सुना होगा, $500 बिलियन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अनाउंस किया है, AI डेटा सेंटर्स वहाँ लग रहे हैं. यूरोपियंस ने $200 बिलियन अनाउंस किया है.
ये कंपटीशन है कि AI की रेस है अब कि चाइना हैज़ कम अप विद एन अमेजिंग वो जो डीप सीक है जो $100 मिलियन में वो लोग कर रहे थे वो $6 मिलियन में वो कर रहे हैं। तो ये 3 ब्लॉक्स में इस वक्त रेस चल रही है AI में। एंड AI को डेवलप एंड AI इज़ जस्ट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। इतनी तेज़ी से आपकी रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी, DNA, जेनेटिक्स, बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक जो है ना वो टोटली रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगे अगले चंद सालों में। अच्छा, that is going to provide you the answers also. Initially, it will destroy you. It may actually create adverse impact on the climate also. There is a book by Mustafa Sulaiman, जो डीप माइंड का जो है CEO था, The New Waves जो है ना, और इस तरह की आपको बहुत मिलेंगी। All of them are saying कि दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर 1 साल 2 साल के बाद हम यहाँ जब बैठे होंगे तो हम क्या बातें कर रहे होंगे। और अब तो वो इंसान को जो है ना जेनेटिक्स चेंज कर रहे हैं, इंसान इस तरह से पैदा होंगे कि वो मतलब ये है कि यू मे ब्रिलियंट पीपल जो कि 15-16 साल 20 साल में जो है साइंटिस्ट बन जाएं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं असद साहब की तरह नहीं सोचता, मैं थोड़ा जाहिल आदमी हूँ और मेरा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम चेंज हो जाएंगे बहुत जल्दी। आई मे बी एग्री, मगर मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। हमें अल्लाह ताला ने रहमत दी है ट्रम्प की शक्ल में और उन्होंने क्लाइमेट वाला किस्सा ख़त्म कर दिया, तो अमेरिका का एक्सपोर्ट तो हमारा बच गया। ठीक है ना, तो आप परेशान नहीं हो एज़ फार एज अमेरिका इज़ कंसर्न, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट का तकरीबन 50% अमेरिका जाता है। ठीक है, तो अमेरिका में तो ट्रम्प ने हमें, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें एक जगह दे दी। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो कि हम, मगर ये जो आपकी बात है कि ये जो जब अगर मैं कोई टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे, जिस तरह मैंने कहा ना कि मेरा मसला गवर्नमेंट ने आज से नहीं, या मैं आज से बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 15 साल से अपनी फर्म में था, हम रिपोर्टिंग करते थे वहाँ पर एनवायरनमेंट की और क्लाइमेट की, और सप्लायर्स को भी देखा करते थे। तो ये हम पहले भी कर रहे हैं, जो अच्छा एक्सपोर्टर होता है वो करेगा और करता रहेगा। गवर्नमेंट ने ना कभी इस पर पहले हेल्प की है, ना अभी हमें कोई उम्मीद है कि गवर्नमेंट हेल्प करेगी, और अगर गवर्नमेंट इससे बाहर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब गवर्नमेंट देखे ना, हमारा तो अजीब व गरीब हाल है ना, कराची में कोई KMC के अंडर में वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, 3 करोड़ का शहर है, वो सिंध वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है कोई, उसके पास लाड़काना भी है, उसके पास दादू भी है, उसके पास ये भी है, और वो वेस्ट मैनेजमेंट करती है। पता नहीं आप लोगों में से कभी किसी को गया हो तो दुनिया की बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड इज़ तेहरान सिटी। वो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं वेस्ट से। तो मैं इसे अब ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप हमारा जो मसला है वो एक्सपोर्टर को पड़ रहा है, आज नहीं पड़ रहा, पिछले 20 साल से पड़ रहा है कि वो कहते हैं कि आप एनवायरमेंटल और लेबर लॉज की और इसकी सारी कंप्लाइंस करें, और हम कर रहे हैं। मगर मैं इसको रिवर्स में असद ने कहा, हम इसको रिवर्स में देख रहा हूँ। ना चाइना कंप्लाई कर रहा, ना इंडिया कंप्लाई कर रहा, ना अमेरिका कंप्लाई कर रहा, अब सिर्फ यूरोप रह गया है। और मेरी यूरोप की एक्सपोर्ट $15-16 बिलियन के आसपास, 12-14 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, 7-8 बिलियन की है। उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, मगर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं इस बात से असद की डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में डायरेक्ट औरत की जगह पर रोबोट आ जाएगी, ये नहीं होगा। इट विल टेक मे बी 10 years 20 years, बट हमें एक ट्रांजिशन में जाना है। पहले हमें अपनी एक्सपोर्ट को ह्यूमन एफर्ट से बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आएगी। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे चला जाऊंगा और वहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, क्योंकि हमारे में इतनी अक्ल भी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर इंडियन लेके जाएंगे, हम क्यों लेके जाएंगे, वो तो हमसे आगे है ना। तो टेक्नोलॉजी जो चेंज करेगी तो इंडिया को एडेड एडवांटेज देगी, मुझे नहीं देगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बंदे हैं एक्सपोर्ट। तो इसलिए हमें अपने कदम ज़मीन पे रखने चाहिए। टेक्नोलॉजी की मैं जो बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी ऑल्सो मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव, इट मेक्स यू मोर कम्पिटिटिव। तो अगर आप, द रीज़न वाई वी डोंट एक्सपोर्ट इज़ कि जो चीज़ भी हम बनाते हैं उसमें भी हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है कंपेयर टू द वर्ल्ड। So AI and digitization makes you more productive, it makes individuals more productive, it makes companies more productive, it makes government more productive. तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। मैं just
सो टू कमेंट्स, एक मैं दो इस्तेलाहात को थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि मैं दो सिर्फ यहाँ चीज़ें कहना चाहती हूँ। जो कहा था कि क्लाइमेट चेंज का हमारे पास कोई मुतबादिल उर्दू में लफ्ज़ नहीं है, उसको हम मौसमियाती तगय्युर कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमारे यहाँ एक एडवर्सेरियल नहीं है टू ग्रोथ, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पायदार तरक्की, वो तरक्की जो आइंदा भी हम कर सकें, अगली नस्ल के लिए भी हम कुछ चीज़ें छोड़ सकें। हमारे जो माहौल है वो इस तरह का ना हो जाए कि अगली नस्ल के लिए वो यूजेबल ना हो। तो आप जो एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की, आप मरीन की बात कर रहे थे, अगर आप नेवी की सिर्फ रिपोर्ट उठा के देख लें ऑफ द effect of corrosion on their assets, तो that's horrific because of pollution। और इसीलिए मैंने शुरू में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को अलग किया था कि पोल्यूशन कर रहे हैं हम, हमें उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत से मसाइल पोल्यूशन रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज के मसाइल जो हैं वो उसको एग्जैसिबेट करेंगे, उसके असरात को बहुत ज़्यादा। और उसका असर, जैसे असद साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जो पॉवर्टी की लाइन से नीचे लोग हैं सबसे ज़्यादा उन पे पड़ेगा, वो उससे कोप नहीं कर सकेंगे। अब नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी भी आ गई हुई है और नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस पॉलिसी भी मौजूद है। उसको देखें, वो कहीं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान को तरक्की नहीं करनी चाहिए, ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अब थोड़ा सा पैराडाइम डिफरेंट है जिसमें हम रिसोर्स की इस तरह की एक्सट्रैक्शन नहीं करें कि वो आइंदा नस्ल के लिए ना रहे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कोई टकराव नहीं है। कौन नहीं करना चाहता, हम भी बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी बेहतर हो, आने वाली नस्ल के लिए भी बेहतर हो, लेकिन वो बेहतरी जो एक 60-70s का डेवलपमेंट पैराडाइम था, अब वो उससे मुख्तलिफ है और अब उसके लिए आपके पास रोड मैप भी मौजूद है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट गोइंग ऑन दैट पाथ। अगर हम उस तक जाएंगे ही नहीं तो हम उस पर फिर उसके वो जो बेनिफिट्स हैं हम उसको नहीं रीप कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे बताया कि ये एक ऐसी डिबेट है और जो हजरात हमारे पास बैठे हुए हैं इनके पास इल्म का समंदर मौजूद है, हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मगर मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है जो इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, इक्विटी बेस्ड हो। ये 3 E's जो हैं ये हमारे लिए फिर भी इम्पॉर्टेंट है। हमें एफर्ट करते रहना है, हमें इफ़ेक्टिव होना है, हमें एफिशिएंट होना है और हमें इंक्लूसिविटी लानी है। तो इन्हीं अरवाल के साथ मैं आज के सेशन का अख्तिताम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।